What is cosmetology? Dermatology is all about your skin, but cosmetology includes everything. What is perfect face shape, or we can say a perfect skin? कोई perfect face shape होती नहीं है. We are trying very harmful products also on our skin by getting inspired from social media. What is the difference between these fillers and Botox? Botox और fillers से ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत ही safe procedures हैं. What are the common skin concerns people are coming with? Premature aging बहुत आ रही है and hair loss. लिवर जितना क्लीन है, शक्ल उतनी अच्छी है. Normally starting कितने से होता है? To talk about any one session of Botox. आज की डेट में आपको 20s में भी एंटी एजिंग की जरूरत है. ब्लैक कलर कम ब्लैक होगा जितने ब्लैक लिप्स के आजकल केसेस आने लगे. स्मोकिंग से आपका फेस एकदम डल हो जाता है. आपके रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं. मेनी क्रीम्स आर लोडेड विद स्टीरॉइड्स. Hello and welcome to Live with Monica podcast. Our guest today is someone who knows all about, skin, beauty and healthy hair and a magic touch that transforms everybody's look. And she's passionate about, cosmetology and who helps people look better and like their best. So let's welcome to our skin expert and hair expert, Simpi Matharu. Hi, how are you? I'm good, Monica. Thank you for having me here. Thank you so much for coming. So Simpi, we just want to know about the journey, how you are a businesswoman, from where it started and all. Okay. So, being a woman, it is never easy to first get into business, especially when you don't come from a background जहाँ पर लोग business करते हो आपकी family के अंदर, right? So, if you ask me about my journey started from my own problem. I'll tell you, I was always overweight when I was small. Okay. Right? And then I grew up, I lost weight, I got married. You know how our Indian societies are, na? Right. कि शादी कर लो, सब कुछ शादी के बाद में ही करना. Although I studied a lot before marriage also, I did my MBA, I did all my, basic education. Okay. And उसके बाद में शादी हो गई. तो पेरेंट्स ने भी क्या बोला कि करियर तो बाद में भी बन जाएगा शादी के बाद में, there's no problem. Got it. Right. Yeah. But when I got married, तब तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे करना क्या है लाइफ में. And finding that reason कि मुझे करना क्या है, I ended up gaining so much more weight कि मुझे डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया अपने आप को देखकर. Yes. Okay. And शायद वहीं से कहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई टू बी एन हेल्थ एक्सपर्ट. अपनी बॉडी को ठीक किया, ग्रेजुअली अपनी स्किन को ठीक किया. सो इन शॉर्ट, इफ आई टेल यू दैट my own journey of fixing my own body and my own looks led me to be a businesswoman into the health industry. Okay, so you always want to be a skin expert or from this industry, or? No. Okay. I never knew what I wanted to be in life like many other women. Okay. जैसे बहुत सारी आम women's को नहीं पता होता उन्हें करना क्या है लाइफ में. Right. हाँ, बट क्योंकि women एक epitome of beauty है. Women एक कहते हैं ना खूबसूरती की मूरत है. It's our right to look beautiful, to feel confident. तो जब मुझे लगा लाइफ के अंदर मेरी ब्यूटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मेरी लुक्स कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मेरी बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, एक तरह से मैं इतना वेट पुट ऑन कर रही हूँ, मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. Okay. एंड प्लस मैं अपना करियर भी नहीं बना पा रही हूँ. तो ये सब चीज़ों ने मिक्स करके मुझे कहते हैं ना, व्हेन गॉड प्लान्स फॉर यू, बस आपको सुनना होता है कि क्या रास्ता मेरे लिए ईश्वर ने चुना है. सो आई थिंक दिस ऑल वाज प्लान्ड बाय द गॉड एंड आई जस्ट सरेंडर्ड. एक के बाद एक जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलती गई, जैसे मेरी लाइफ में कोई भी पेन आता गया, मैं उसका सोल्यूशन ढूंढती गई. मेरा वेट पुट ऑन हुआ, मैं डाइटिशियन बनी. Okay. अपने वेट को ठीक करने के लिए और मेरे जैसी बहुत वुमेन्स को ठीक करने के लिए. मेरी स्किन खराब हुई कोविड में, आई स्टडीड कंप्लीट कॉस्मेटोलॉजी. मेरे हेयर खराब हुआ, आई स्टडीड कंप्लीट ट्राइकोलॉजी. ऐसे ही करते टुडे आई एम हियर हेल्पिंग सो मेनी वुमेन. Nice. बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर पेन. Okay. So what is cosmetology, and the term we normally use, that permanent makeup something, right? So what is it? सी परमानेंट मेकअप कॉस्मेटोलॉजी के अंदर आप ये कह सकते हैं एक कैटेगरी है. Okay. Cosmetology is how you take care of, it's about your skin. Okay. It includes your hair also to an extent. It includes your body also. So cosmetology is... It's a combination of skin, hair and body. कुछ लोगों को लगता है combination नहीं है, but when you go to a clinic where there are cosmetologists, dermatologists, Right. like dermatology is all about your skin. But cosmetology includes everything in a way
मैं ये नहीं बोलूँगी ब्रॉडली इंक्लूड करता Because है. I think these three are connected. You know how you can enhance your Yeah. beauty. That's Right. cosmetology, if you ask me. Okay. ये मेरी definition है. Okay. So like what is perfect face shape, or you know we can say a perfect skin? What is it like? Is it a myth, or is there something कि this is perfect, ऐसी perfect face ऐसा होता है, या फिर perfect skin ऐसी होती है? मतलब ऐसा कुछ होता भी है या फिर देखो परफेक्ट फेस शेप ना कोई परफेक्ट फेस शेप होती नहीं है. ट्रेडिशनली बोला गया है दैट यू नो ओवल फेस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड शेप. ठीक Okay. है, बट इट्स नॉट दैट दोज पीपल हु डोंट हैव ओवल फेस, लाइक आई डोंट हैव ओवल फेस, right? but do I not look good? No, I Yeah. do look good. So it's about more of a harmony and balance of your features. Right. But you know, Right? like जैसे makeup के लिए if we talk about makeup, so makeup में भी normally face shape और features को काफी enhance किया जाता है Yes. because of that perfection वाला, Yes. right? वो वहाँ से mindset हुआ है, I guess. एग्जैक्टली. अब अगर आप देखो राउंड फेस का भी मेकअप होता है, ओवल शेप का भी मेकअप होता है, Right. स्क्वायर फेस का भी मेकअप होता है, बट आपको कैसे फीचर्स को एनहांस करना है, Right. सिंक में लाना है, सिमेट्री में लाना है, दैट इज द जॉब ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट ना. Right. राइट. तो Yeah. कोई परफेक्ट फेस की शेप नहीं है. ओवल फेस इज कंसिडर्ड टू बी ब्यूटिफुल, Okay. बट आई थिंक एवरी फेस कैन बिकम परफेक्ट बाय ब्रिंगिंग दैट हार्मनी एंड सिमेट्री Okay. एंड बैलेंस Right. इन देयर फेस. एंड रही बात स्किन की, परफेक्ट स्किन की अगर हम बात करें, हाँ परफेक्ट स्किन की एक डेफिनेशन है, एक ऐसी स्किन जो हेल्दी है, एक ऐसी स्किन जो ग्लो करती है एट Right. एनी एज. अ स्किन विच इज स्मूथ, विच इज अनइवन, जिसमें विच इज नॉट अनइवन, द Right. टोन इज वेरी इवन, इट्स स्मूथ, Right. it does not have wrinkles, you know, it's glowing, it's healthy. Natural. That is healthy, a yeah. yes. Okay. Does not natural. I nowhere mention it should be light complexion, dark complexion, medium Yeah. complexion. No, Because I it- think beauty is not about complexion at all. complexions, Yeah. Yes, it is too much about your skin. Yeah. So like why people are having so much like skin concerns nowadays, or like we can say like nowadays they are aware about the concerns, like what is it? Because I think concerns are also increasing about the skin, right? The I reason can't behind tell it- you. जितने केसेस हमारे पास शायद आज से 4 साल पहले आते थे, तो केसेस हैव like gone 3 times up Okay. with skin concerns. That's, So the reason behind it, like what do you think? of course, the kind of environment we are living in, pollution, lack of sleep, overexposure to the Instagram and screens and Yes. internet. The pollution, I guess. Pollution तो definitely है ही है. And कहीं ना कहीं क्या हो गया ना कि we are trying very harmful products also on our skin by getting inspired from social media. Okay. ये जो हम randomly picked products भी अपने face पे use करते हैं, इसके भी खराब हुए cases, lot of cases comes to us. Right. Yes. So yeah. So let's talk about the treatments, like the Botox and fillers. So can you just tell us like what is it actually? Because बहुत सारे लोगों को भी ये actually में ना knowledge ही नहीं है कि होता क्या है, and they are just negative about it. True. So just tell us like what is it actually, and process क्या होता है, and क्या life time होता है, मतलब कितना life होता है if we talk about one session or something. So yeah. देखिए बोटॉक्स और फिलर्स से ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर्स हैं. प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना एडुकेटेड नहीं है इसको लेके. Okay. लोगों को लगता है यार नीडल्स, ओह माय गॉड पता नहीं क्या हो गया. Face पे needles, yeah. लाइक आई टेल यू, मुझे बचपन से नीडल से बहुत डर लगता था. Okay. मुझे याद है आई गॉट मैरिड, शायद तब तक भी मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया था अपनी लाइफ में. Okay. फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर माई हस्बैंड टुक मी टू take my to go I went for a blood test. Right. My husband was holding me so tight and doctor blood ले रहा है and I was very scared. एक टाइम आया Because when वो हम I देख रहे होते हैं सामने ना. I think that's why ज़्यादा इफेक्ट होता है. एक टाइम आया जब मुझे had to plan my baby. I went for IVF also. ऐसे इंजेक्शन लगवा रहे हैं जैसे पता नहीं बात करते करते इधर इंजेक्शन लगा रहे हैं, इधर इंजेक्शन लगा रहे हैं. यू अंडरस्टैंड, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, व्हेन यू फेस दैट फियर, वो डर निकल जाता है. ऐसे ही ना लोगों को लगता है यार बोटॉक्स, फिलर्स, नीडल्स, ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ी चीज़ हमने अपने फेस पे करा ली है. माय गॉड इस एज में तो हमें ये चीज़ करानी ही नहीं चाहिए. हम तो हमारी तो फैमिली में किसी ने ये चीज़ नहीं कभी करी, मैं Right. कैसे करा लूँ. अरे भाई लाइफ में बहुत कुछ हम पहली बार ही करते हैं. Exactly. व्हेनेवर डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, आपकी कंडीशन क्या हो चुकी है फेस पे. घर में वेडिंग है, आपका फेस इतना ज्यादा डल है, रिंकल्स भरे पड़े हैं. आप अगर मेरे पास 1 महीना पहले आ रहे हो, पूरी स्किन आपकी सैग कर चुकी है, आपका स्किन का वॉल्यूम खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं आपको आई वुड से बोटॉक्स इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स. यू शुड ट्राई इट. Yeah. Okay. क्योंकि वो जो आपको इम्पैक्ट देगा 15 दिन में,
वो इम्पैक्ट आपको कोई भी नहीं दे सकता। इंडिया का छोड़िए, वर्ल्ड का बड़े से बड़ा कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं दे सकता वो इम्पैक्ट जो आपको इतने शॉर्ट टाइम के अंदर चाहिए। बिकॉज आपको पता है मेरा एक इवेंट लाइंड अप है एंड आई रियली नीड टू लुक 10 years यंगर। राइट। तो ये कमाल फिलर्स और बोटॉक्स कर सकते हैं। तो बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो कि आई डोंट नो ईयर्स, मेनी ईयर्स से लोग यूज कर रहे हैं माइग्रेन के लिए, नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। इट हैज़ बीन यूज, नेक के लिए इतनी बारी यूज हुआ है एंड आपके शोल्डर ब्लेड्स के लिए यूज होता है जब ये ओवर एक्टिव हो जाती है इनकी मसल्स। तो उससे कोई डर नहीं, इट्स जस्ट अब उसको फेस पे यूज कर रहे हैं एंड वो जो प्रोसेस दिखता है आई गेस वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा डर जाते हैं लोग। 30 years पहले भी फार्मेसीज के पास बोटॉक्स होता था, आज भी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फिलर्स एंड बोटॉक्स? सी बोटॉक्स क्या करता है, बोटॉक्स आपका फेस अगर ड्रूप कर गया है, आपकी इफ यू गिव लॉट ऑफ एक्सप्रेशन लाइक लाइंस और समथिंग, कईयों को आदत होती है, बहुत फ्रोन लाइंस दिखती हैं, यू नो दे रेज देयर आईब्रोज अ लॉट, तो आपकी यहाँ की मसल्स ना एक्टिव हो जाती हैं बहुत ज्यादा, उनको वो एक परमानेंट रिंकल्स बना देती हैं। लाइक सिंपल वर्ड्स, एग्जैक्टली वो आपके एक परमानेंट रिंकल्स या फाइन लाइंस नहीं बोलूंगी, प्रॉपर लाइंस दिखने लग जाती हैं। ओके, यू गिव टू मच ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक दिस, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्माइल लाइंस होते हैं। आई गिव दिस एक्सप्रेशन तो मेरा भी एक 11 हल्का सा माइल्ड आता है, राइट, ठीक है। तो उसको हम लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, वो ओवर एक्टिव मसल्स को हम लोग जैसे ही बोटॉक्स देते हैं उस एरिया के अंदर, वो ओवर एक्टिव मसल रिलैक्स हो जाती है। जैसे एक जकड़ी हुई बॉडी और एक रिलैक्स्ड बॉडी, गॉट इट, एकदम रिलैक्स। तो जैसे ही वो रिलैक्स होता है वो एरिया, वहां से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। एंड आई थिंक वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम जिम स्टार्ट करते हैं, आपकी बॉडी बहुत लूज होती है एंड व्हेन यू जस्ट गेन मसल्स, तो वही बॉडी आपकी स्किन टाइट हो जाती है। दिस इज समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। तो वो एरिया वहां पर मसल्स रिलैक्स कर देता है, एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो जाते हैं, आपका यू लुक मच बेटर। और एक ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बोटॉक्स आपको लिफ्ट भी देता है। जैसे मैं बोटॉक्स, यू नो आई हैव टेकन बोटॉक्स ऑन माय नोज, क्योंकि मेरा एक ब्रॉड नोज है थोड़ा सा, तो उसको एक शेप में लाने के लिए, अगर मुझे एक नॉन सर्जिकल वे में उसको शेप में लाना है, I take nose botox and it's absolutely safe. Okay, so like जैसे as you said कि बड़ा है तो उसको वो शेप लगता है, स्लिमर लगता है, शार्पर लगता है। तो नोज में हम अगर बात करते हैं तो कहाँ पे दिया जाता है वो इंजेक्शन? If we talk about like we give it here, we give it on these sides depending upon किस एरिया को आपको स्लिम करना है। Okay, got it. Yeah, it's very safe. So this is for slimming or this is for like I thought कि क्योंकि मसल एक्टिव है ना, जैसे कुछ लोग अपने नोज को बहुत you know they just pump it, right? तो मसल्स एक्टिव है, अब उनको रिलैक्स कर दिया तो एक शेप में आ गया। I have taken botox on the nose, front and this side. So even people take it on the masseter muscle, जैसे करीना कपूर हैं, उनका ये वाला portion is like broad, right? So if you also have something like that, you can take it on these muscles. That double chin वाला something, वो भी even double chin also helps, वो भी। So फेस की स्लिमिंग भी करता है, फेस की टाइटनिंग भी करता है, अगर आप मेरे से इन शॉर्ट पूछो तो। Got it. Yes. And what about fillers? Fillers should are taken usually जब आपको लगता है कि मेरे कुछ फीचर्स बहुत पतले हैं, या with age you know my lips have gotten very slim, वॉल्यूम लॉस हो गया है, मेरे चीक्स बिल्कुल नीचे आ गए हैं, वॉल्यूम लॉस हो गया है फेस से मेरे, बिल्कुल यू नो एक सर्टेन एज के बाद आपकी फेस का फैट भी तो कम होता है ना, तो वॉल्यूम लॉस होता है, तो वहां पर वापस एक डेफिनेशन एंड सिमेट्री के लिए वी यूज फिलर्स। ओके, सो एज पर यू, मतलब ये पर्टिकुलर एज के बाद में लेना होता है, और वी कैन स्टार्ट लाइक व्हाट इज द एज की कोई भी स्टार्ट मेरे पास 20 इयर्स के लोग भी आते हैं फिलर्स लेने के लिए। यस, क्यों नहीं। नाउ सपोज इफ समवन इज हैविंग अ वेरी थिन अपर लिप, वो क्या करेगा, जैसे मेरा अपर लिप भी पतला था, ओके, टिल 42 मुझे फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं 43rd ईयर में आई, मुझे लगा यार आई शुड टेक इट नाउ, तो मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट किया कि मैं अब फिलर लूंगी। मैंने लिया ना, आई स्वेयर आई रिग्रेट मैंने पहले क्यों नहीं लिया, बिकॉज इतना अच्छा लुक उससे मुझे अपने खुद के फेस का लगने लग गया है। तो अगर कोई 20 साल में आ रहा है, उसको ऑलरेडी बहुत पतला लिप है, तो व्हाई नॉट टू गिव दी सिमेट्री। ओके, इट्स सेफ, कोई उसका हार्म नहीं। सी देखो, अगर आप पॉइजन 20 की एज में लो, 40 की एज में लो, 60 की एज में लो, पॉइजन है, बट ये पॉइजन नहीं है ना। आप 20 में लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ स्टार्ट एट 15, व्हेन यू हैव क्रॉस्ड योर 18-20, यू absolutely it's safe, it is of no harm, like there is no limitation ki you know as per age ki आप hyaluronic acid के serums आजकल बच्चे मास्क, फेस मास्क नहीं लगाते। okay, so what is inside this like you know जो liquid होता है इसमें botox और fillers में, what is that? I'll tell you. See, botox is a toxin, okay, which is very safe, botulinum toxin होता है। fillers की अगर हम लोग बात करते हैं, fillers एक जेल कह लीजिए आप, which is hyaluronic acid based gel,
Okay. जो वॉल्यूम के लिए यूज होता है, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आपको एक लिफ्ट, एक वॉल्यूम देनी है। Got it. ओके सो सी आई थिंक जो लोग जो नेगेटिव होते हैं ना, वो जैसे सोशल मीडिया पे आई हैव सीन ऑल्सो सम सेलिब्रिटीज़ का भी कई बार बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। जैसे अभी आई थिंक उर्फी का दिखाया हुआ था कि दैट वाज समथिंग। सो इट्स अ प्रोसेस कि जब होता है तो इतना स्वेल होता है, और इट्स समथिंग की साइड इफेक्ट और समवन डू इट इन अ रॉन्ग वे, दैट्स वाई वो इस तरीके से दिख रहा है। आई स्टिल डाउट कि उर्फी का जो वीडियो है वो रियल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। बट मैंने आज तक इन माई करियर ऑफ practicing cosmetology in the last 4-5 years not even seen a single case जिसके lips कभी इतने वो हुए हों। Okay, but I think मतलब इतने swollen up हुए हों। The way of doing it, it's also matters, right? I think Urfi would be going to one of the of best course, yeah, exactly. doctors। तो one of the best doctors से ऐसी mistakes मुझे नहीं लगता कि इतनी social media, of course, we can't believe like anything could be happen on social media. What is that? But I have not seen any doctor I know in this fraternity. I have not seen कि किसी ने ऐसा lips इतना swollen up कर दिया। थोड़ा सा swelling आता है, और वो swelling भी आपका मेरे हिसाब से 2-3 दिन में निकल जाता है। वो बहुत mild swelling। So that's a process कि मतलब अगर आप करते हैं तो it's a mild swelling तो आएगा, right? No pain, it's a normal pain, process. no gain यार। Yeah, this is what I'm saying, like it's a process। इतनी कम swelling होती है कि you can easily go out with that। Okay. Yeah, so like what are the common skin concerns your like people are coming with nowadays, जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको लग रही है कि तो सबको ही है, मतलब ज़्यादा? Majorly I think every case is coming up with pigmentation। Okay. In any form, it can be on forehead, cheeks, melasma भी हो सकता है, sun tan भी हो सकता है। Okay. Plus acne के cases बहुत आने लगे हैं, hormonal acne के cases, and premature aging बहुत आ रही है, and hair loss। Okay. So let's talk about pigmentation. So like how do you find out कि because as I know pigmentation को normally ये बोला जाता है कि it's connected to liver directly, right? Internal होता है, and so how do you know कि मतलब internal है, outer है, मतलब external है, तो how you treat it? See, when we understand the lifestyle of a patient, और Okay. pigmentation का आपको देख के समझ में आ जाता है ये sun tan है, Okay. या ये इंटरनली आपका पिगमेंटेशन आ रहा है। Okay. इफ इट इज अ सन टैनिंग, वो समझ में आ So जाएगी। sun tanning also looks like pigmentation? yes एब्सोल्युटली। कईयों को तो पिगमेंटेशन खराब ही उनका सन टैन की वजह से, तभी तो बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाओ। Right. Because so many rays are going inside your skin that is spoiling your skin, and you becoming so much more prone to pigmentations। Okay. Right? तो सन टैन समझ में आता है, दैट्स एन एक्सटर्नल पिगमेंटेशन। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पिगमेंटेशन ऑन द फेस comes from within, comes from inside the body, comes from lack of sleep, comes from poor eating habits, poor nutrition। आप अपनी बॉडी को क्लीन नहीं कर रहे हो, आप अपने लिवर को क्लीन नहीं कर रहे हो, आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हो, Okay. आप टॉक्सिन्स नहीं साफ कर रहे हो, आप अपने लिवर के सेल्स नहीं रीबिल्ड कर रहे हो, आपका वाटर का इंटेक बहुत पुअर है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्लस सबसे ऊपर स्ट्रेस कितना ले रहे हो, Stress. और अगर स्ट्रेस हो रहा है उससे डील कैसे कर रहे हो, Right. उसको निकाल कैसे रहे हो अपनी बॉडी से, या उसको लेके बैठे हो, बिल्कुल जब भी डाल के बैठे हो स्ट्रेस के साथ। Right. So like pigmentation के लिए how to correct the pigmentation, अगर आपके पास आते हैं कोई तो आप उनको क्या ट्रीटमेंट मतलब रिकमेंड करते हो? सो मोनिका, एक्चुअली पिगमेंटेशन के ना पहले बहुत सारे टाइप्स हैं। Right. ठीक है, तो पिगमेंटेशन में बहुत सारी तरीके हैं। So पहले पता लगाते हो सन टैन कि है what तो type आप of लेजर टोनिंग से भी ठीक कर सकते हो। Okay. ठीक है, आप पील से भी ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत डीपर लेवल पे अंदर से डिस्टर्ब्ड हॉर्मोन्स की वजह से पिगमेंटेशन आ रही है ना समटाइम्स, which I call as a melasma, one of the most difficult pigmentation to treat। It's melasma. Yes, it's melasma। अगर melasma है तो केमिकल पील्स काम करती हैं। ठीक है, लेजर टोनिंग बहुत सारे डॉक्टर्स को लगता है काम करती है, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं काम करती वहाँ पर। Okay. मेरे एक्सपीरियंस में अगर melasma है, we can go with very wonderful skin lightening cocktails, Okay. which works wonders। So I started trying that in my clinic, and I see every patient जो melasma के साथ में आ रहा है हमारे यहाँ So पर like ठीक हो रहा आपको कैसे, आप कोई टेस्ट करते हो, like पता लगाते हो पहले ना कि melasma है और what देखिए, type of? when you are in the industry आप पढ़ते रहते हैं, exactly. आपको पढ़ना ही पड़ता है। प्लस वेंडर्स भी होते हैं हमारे अपने, वो भी हमें बताते हैं, प्लस हम भी पढ़ते हैं फिर उन चीज़ों के बारे में। फिर जब हमें लगता है यार इसकी कॉम्पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, Right. जो एक्चुअली में इन सब टॉक्सिन्स की वजह से जो पिगमेंटेशन फॉर्म हुई है इसको निकाल सकती है बॉडी से। Okay. राइट, तो देन वी ट्राई दैट। Okay. And pigmentation में एक होता है कि पिगमेंटेशन अभी आई किसी को 3-4 मंथ से है, एक होता है कि इट्स बीन फ्रॉम 3-4 ईयर्स,
तो दोनों के साथ कर सकते हैं, लाइक ट्रीट हो जाते हैं दोनों? बस थोड़ा टाइम का ही फर्क होता है। अगर जितनी Okay. पुरानी पिगमेंटेशन है उतनी स्टबन होती है। देखो पिगमेंटेशन के बारे में मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे ही आपको दिखे मेरे फेस पे कहीं पिगमेंटेशन हो रही है, ट्रीट इट अर्लीस्ट। ओके। यू डोंट वेट के अभी तो सिर्फ बिगनिंग है, छोटा सा ही स्पॉट है, अपने आप चले जाएगा। DIYs करते रहते हैं हम लोग, DIYs करके हम ऊपर की स्किन को और सेंसिटिव बना लेते हैं। राइट। सो वहां मैं सजेस्ट करूंगी इट्स बेटर यू गो एंड यू गेट द ट्रीटमेंट, या आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए अच्छे, राइट? Okay. बट डोंट वेट के पहले और स्प्रेड हो ले फिर मैं जाऊं, क्योंकि उतनी पुरानी हो जाएगी उतना डिफिकल्ट हो जाता है फिर उसे ट्रीट करना। Okay. ठीक तो तब भी हो जाती है वो, टाइम ज्यादा लगता है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट So, ज्यादा लगती है। जब ये कोई भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, लाइक बोटॉक्स, फिलर और जो भी आपने अभी कॉकटेल्स फॉर पिगमेंटेशन, इनका कुछ लाइफ टाइम होता है, और इज इट समथिंग कि एक बार करा लिया सेशन, और मतलब क्या है प्रोसेस? सी पिगमेंटेशन कैन कम बैक। ओके। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने उतनी पिगमेंटेशन कभी वापस नहीं आते देखी एट माय क्लिनिक, तो जितनी लेकर आया था कोई मेरे पास कभी किसी जमाने में। थोड़ी बहुत माइल्ड पिगमेंटेशन रिटर्न हो सकती है, आपने प्रॉपर्ली सनस्क्रीन नहीं लगाया, आप कोस्टल एरिया में चले गए, यू नॉट कवरिंग अप योरसेल्फ, योर फेस। ओके। आपने जाने से पहले कोई ऐसी फेस वॉश यूज कर ली जिसमें AHA और BHA भर भर के है, या आपने कोई पील लगा ली जिसने आपके ऊपर की स्किन को पील ऑफ कर दिया, एंड फिर आप कोस्टल एरिया में जा रहे हैं, और सनस्क्रीन भी आप एक ही बारी लगा रहे हैं, 2 ही बारी लगा रहे हैं, तो यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ रीडेवलपिंग योर पिगमेंटेशन। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके मेरे फेस पर मेलाज्मा या पिगमेंटेशन है, अब कुछ चीजें मेरे लिए थंब रूल हैं जिनके बिना मैं चल नहीं सकता या चल नहीं सकती। मुझे कभी किसी भी वेकेशन पे जाने से पहले फेशियल नहीं लेना है, या बिकॉज उसका कोई आई थिंक यूज नहीं रहेगा, क्योंकि फेशियल आपके फेस के बैरियर को हटा देगा। डेड स्किन हट गई, फेस एकदम क्लियर है, सामने से सन है, राइट, इट्स डैमेजिंग योर स्किन। एंड आई थिंक दिस इज द मेन थिंग जो सब लोग गलती करते हैं। लोग वेकेशन पे जाने से पहले चमक के जाते हैं, वो सब कुछ करके जाते हैं। नो एब्सोल्युटली नॉट। द राइट थिंग शुड बी गो ऑन द वेकेशन, कम बैक, गेट योर स्किन कंप्लीटली क्लीन, बिकॉज़ टैन एंड ऑल सब भर के आता है फिर। एग्जैक्टली। बस आप एंड जितना आप पिगमेंटेशन के साथ में कैरी अम्ब्रेला, प्लीज सनस्क्रीन को दिन में 4 बार ही लगाइए। इफ यू हैव मेलाज्मा, इफ यू हैव पिगमेंटेशन, ट्रस्ट मी। एंड सनस्क्रीन भी सिर्फ इतनी सी नहीं, प्लीज आपकी 2 फिंगर्स भर के आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ओके, यस, 3-4 बार दिन में लगाओ। मेकअप भी करना है, मेकअप उतरने दो, बट स्किन पे पिगमेंटेशन वापस नहीं आएगी अगर आप ये चीजों को केयर करें। एंड ऑफ कोर्स एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, ओके, आप ऑरेंज जूस लीजिए, लेमन वाटर लीजिए, टेक बेरीज, ये सब डाइट जरूरी है, क्योंकि आपके लिवर को क्लेंस करती रहेगी। लिवर जितना क्लीन है, शक्ल उतनी अच्छी है। इंटरनल तो लिंक है ऑफ कोर्स स्किन से, मेजर। आपको क्या लगता है हार्मोनल इंबैलेंसेस क्यों हो रहे हैं इतने सारे? एंड आई थिंक जो एक्ने एंड ऑल होता है दैट इज बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल इंबैलेंस। लिवर का बहुत बड़ा रोल है आपकी हार्मोनल इंबैलेंसेस में, राइट? If your liver is not functioning properly, you are going to get hormonal imbalances in the body. Okay, because see, द मिथ है कि नॉर्मली लोगों को ना जितनी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उनको लगता है कि अगर हमने एक बार करा लिया तो फिर हमें हमेशा कराना पड़ेगा। नहीं, सो आई जस्ट वांट लिटिल क्लैरिटी ऑन दिस कि लाइक फिलर्स और बोटॉक्स के बारे में। देखो फिलर बोटॉक्स की अगर मतलब इज देयर इज अ सेशन कि एक अगर हमें सी इफ आई वांट टू टेक राइट, तो कुछ मिनिमम सेशंस होते हैं कि इतना लेना है, और लाइक एक सेशन से कितना इफेक्ट होता है? ओके, सो आई विल कवर इट नाइसली। बोटॉक्स अगर आप जब भी कराते हैं, इट इजीली स्टेज फॉर 6 months 8 months तक रहता है, अगर आपने अच्छे ब्रांड का बोटॉक्स कराया है। गॉट इट। उसके बाद में आपकी मर्जी है, आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे आपका बोटॉक्स खत्म हो रहा है, आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, जैसे MNRF है, माइक्रो नीडलिंग है, आप हाइफू है, ये सब चीजें आप शुरू कर दो, जिससे आपकी स्किन नेचुरली आपके रिंकल्स इरेज होने लग जाएंगे। आपने क्या करा, पहले एकदम से ठीक किया, क्विक फिक्स किया, उसके बाद में आपने क्या करा कि नाउ दैट आपने ग्रेजुअली प्रिवेंटिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए कि मैं अपनी स्किन को टाइट करती जाऊं, फेशियल योगा स्टार्ट कर दिया आपने, ये सारे ट्रीटमेंट्स लिए। उससे क्या होगा कि आपको मे बी बोटॉक्स को दोबारा रिपीट कराने की जरूरत ना पड़े। राइट, आप फिर क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा इवेंट आया घर में, तब दोबारा आप रिपीट करा लीजिए। व्हेन इट कम्स टू फिलर्स, सी फिलर्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फिलर्स अगर आपको किसी एरिया में वॉल्यूम चाहिए, सपोजिटली मुझे लिप में वॉल्यूम चाहिए या मुझे चिन में वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे वो लेना ही पड़ेगा। ओके, राइट, बिकॉज़ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आई थिंक जो अच्छा फिलर आप यूज कर रहे हैं, इजीली 2-3 साल चलता है वो। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको हर 6 months में यू हैव टू, एंड देन बैक टू नॉर्मल हो जाता है, जैसे जैसे वो उसका टाइम ग्रेजुअली यस। उतना मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, फिलर भी ऐसा नहीं है, लेट मी टेल यू दैट कि 2-3 साल में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सम अमाउंट हमेशा रहता है अंदर।
ओके, डोंट ओवरडू बस. या एग्जैक्टली, वो सभी चीज़ों में आई थिंक फॉलो करना चाहिए. करना चाहिए. या सो लाइक हाउ टू सेलेक्ट लाइक फ्रॉम वेयर टू हैव दीज ट्रीटमेंट्स, मतलब किसी नॉर्मल इंसान को जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो बिकॉज अभी एज यू नो कि इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली एनसीआर और किसी भी सिटी की बात करते हैं तो काफ़ी सैलून्स में भी छोटे मोटे कुछ ट्रीटमेंट्स होने लगे हैं. सो हाउ टू सेलेक्ट कि मतलब हमें कहाँ से कराना है, बिकॉज आई थिंक साइड इफेक्ट्स एंड ऑल दैट वो मैटर करता है कि आपने कहाँ से कराया है. डेफिनेटली बहुत मैटर करता है. इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सर्टिफाइड क्लिनिक पे जाइए जहाँ पर ट्रेन डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं. यू सी देयर रिजल्ट्स, आप उनके टेस्टिमोनियल्स देखिए, आप उनके रिजल्ट्स देखिए. आप देखिए, अब जैसे मेरे यहाँ पर एक क्लाइंट आती है फ्रॉम बैंगलोर, वो हर साल मेरे से ही करवाने आती है बोटॉक्स. उसको अच्छा लगता है, ठीक है, बोटॉक्स करवाना. शी इज़ वेरी रेगुलर. तो अगर कोई क्लाइंट्स रिपीटेडली आ रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए इस तरीके की, तो दैट मीन्स दे आर डूइंग इट गुड. राइट. यू कैन चेक देयर सोशल मीडिया ऑल्सो, बट मोर देन सोशल मीडिया आई वुड से, जब आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं ना, एक आपको ना खुद को अंदर से वाइब आता है किसी से बात करके. वो अगर आपसे ट्रांसपेरेंसी के साथ बात कर रहा है ना, आपकी कंसल्टेशन कर रहा है वो डॉक्टर या वो काउंसलर, yes. तो आपको वो समझ में आ जाएगी बात. राइट. एंड देयर एंड देन आई थिंक यू कैन डिसाइड. एंड हाइजीन बहुत मैटर करता है इन ट्रीटमेंट्स में, क्योंकि देखिए हम नीडल्स यूज कर रहे हैं. बिल्कुल. क्या डॉक्टर ने हर ट्रीटमेंट के बाद ग्लव्स चेंज करें, या सुबह से लेकर रात तक एक ही ग्लव्स हर पेशेंट पे चल रहे हैं? पता है आपको, लिटरली मैंने ऐसे ऐसे क्लिनिक्स भी सुने हैं जो लोग ये काम भी करते हैं. इट्स लाइक अ ग्रूमिंग थिंग. जैसे ग्रूमिंग में भी नॉर्मली हाइजीन बहुत मैटर करता है. इट्स हार्डली एन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ मे बी 3-4,000 a month, okay, which you are saving. But you are saving so much of infection which can be caused to your clients, right, to yourself also. Exactly. Right. तो वो hygiene बहुत matter करता है when it comes to. So like just give us idea little bit about कि जो cost होती है वो कहाँ से start होती है minimum से, मतलब normally starting कितने से होता है if you talk about any one session of Botox? See, अगर small area Botox ले रहे हो तो I think small area तो 5-7,000 में भी हो जाता है. Supposedly अब कोई बोले मैं मुझे crow feed कराने हैं, बहुत small area, या nose कराना है, तो it does not, बहुत कम units use होते हैं उसमें. Okay. Right. एंड अगर फिलर की बात करें तो 1 ml फिलर डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिक टू क्लिनिक. ओके. अच्छा फिलर आप ले रहे हैं तो 1 ml कम्स इन 20,000. आप चाइनीज फिलर में जा रहे हैं अब तो 15 में भी आ जाता है 1 ml. Okay. अब डिपेंड करता है चाइनीज की लाइफ कहाँ से ले रहे हैं, कम कितना, है. हाँ, right. आप अच्छा USFDA अप्रूव्ड फिलर ले रहे हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर है. Okay. तो जो भी प्रोडक्ट लीजिए इट शुड बी USFDA अप्रूव्ड. ओके. So like what is basic skincare routine like everybody should follow in daily? बहुत बेसिक वाला, मतलब जो ऐसे लोगों के लिए जो बहुत लेजी हैं स्किन केयर के बारे में, कुछ करना ही नहीं चाहते. इतनी अवेयरनेस हो रही है हर जगह. आई थिंक बाय नाउ तो पब्लिक को समझ आ जाना चाहिए कि फेस वॉश तो करना ही करना है डेली. फेस आपका अच्छे से क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पोर्स के अंदर मेकअप फंसा हुआ है, अगर आपके पोर्स में डस्ट फंसी हुई है, हम इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका पोर धीरे धीरे एनलार्ज होने लग जाएगा. राइट. यू हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली एंड देन लॉक इट विद गुड सीरम्स. अच्छे से हाइड्रेशन से उसको लॉक करो. उसके ऊपर एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाओ, क्योंकि सीरम्स भी उड़ जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर आप उन्हें लॉक नहीं करते हो. विद मॉइस्चराइजर. और मॉइस्चराइजर एक्ने स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, भाई मॉइस्चराइजर सबको चाहिए. बस मॉइस्चराइजर का बेस बदल जाता है. Okay. कोई जेल बेस्ड होते हैं, कोई वाटर बेस्ड होते हैं, कोई क्रीम बेस्ड होता है. सिंपल. ओके. सो लाइक एंड सनस्क्रीन विदाउट फेल. सो सनस्क्रीन स्पेशली फॉर लाइक आउटसाइड और इवन घर पे भी, एनीवेयर. You have to, even if you're sitting, just take shower, apply sunscream. I'm not saying while sleeping you apply. So sunscreen at the top of, like after moisturizer. Last में. हाँ, ये भी क्वेश्चन मुझे कई बार लोग पूछते हैं मोनिका, कि मैम मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन लगा लें. मैं मेकअप के ऊपर लगाओगे सारा मेकअप उतर जाएगा. So like face wash and then last step should be before makeup. Should be sunscreen. Okay. And after moisturizer, I guess, right? हाँ, moisturizer के बाद में. Okay. सो सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं अभी स्किन के बहुत सारे, लाइक बायोटीन, कोलाजिन, ओमेगा. सो लाइक व्हाट इज इट एक्चुअली वर्क्स कि गमीज भी आ रहे हैं, आई हैव सीन. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि कोलाजिन, इफ यू टॉक अबाउट कोलाजिन, सी जो ड्रिंक्स आ रहे हैं. यस. आप कोई भी सप्लीमेंट लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेक श्योर उसमें सिंथेटिक एक्सट्रैक्ट्स ना डले हों. अगर प्रॉपर एक्सट्रैक्ट डले हुए उसके अंदर तो उसका प्राइस भी थोड़ा हाई होगा. ओके. एंड वो बेनिफिशियल भी होगा. सो इट वर्क्स. कोई भी आपके एक्सट्रैक्ट जो है या कोई भी चीज उसमें सिंथेटिक ना डाली हो उन्होंने, उसका सब्स्टिट्यूट, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स भी बना लेते हैं आजकल, वो ना डाले हो. इट शुड हैव एन एक्सट्रैक्ट, प्रॉपर एक्सट्रैक्ट.
तथ्य तो वर्क करते हैं। बायोटिन भी वर्क करता है हेयर के लिए, कोलेजन भी वर्क करता है स्किन के लिए। लेट मी टेल यू, अभी ऑफ लेटली आई मेट समबडी who's 55 and her skin was so well maintained, और उसकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस रहा। तो then we discussed and she was like, ma'am, for many years I've been taking collagen, Right. a good collagen she was taking, Okay. right? So that's important, that works. So like what are the new technologies और treatments जो बहुत instant result देते हैं, you know, skin care में? मतलब यही सब जो आप देखो इंस्टेंट रिजल्ट instant is something कि you know एक हफ्ते का सिर्फ टाइम है, तो इंस्टेंट अगर हमें चाहिए कि इवन इफ वी टॉक अबाउट कि 2-3 days, तो ऐसा भी कुछ ट्रीटमेंट होता है जो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट दे? डेफिनेटली होता है। जैसे अगर आपके फेस पे बहुत टैन है, आप लेजर टोनिंग करा लो, आप कार्बन पील करा लो, आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा। आपके फेस पे बहुत पिगमेंटेशन है, यू कैन गो फॉर अ गुड केमिकल पील। ओके, बहुत ब्राइट लगेगा फेस और बहुत ही क्लीन लगेगा फेस। तो ये हैं जो आप विद इन अ वीक आपको इनके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज बहुत रिंकल्स हैं, बोटॉक्स करा लो, इंस्टेंटली रिजल्ट है। थ्रेड लिफ्ट करा लो, मोनो थ्रेड्स करा लो, इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपको विद इन अ वीक दिखेगा। विद इन अ वीक ना? यस 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 यस। मेडिकेटेड फेशियल्स हैं, वो करा लो, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट दे शुड बी गुड मेडिकेटेड फेशियल ना। ओके, यस। सो लाइक बिगेस्ट स्किन केयर मिस्टेक यू सी पीपल आर डूइंग? They are skipping their sunscreens. Sunscreen. Yes, that's the biggest Because I skincare think ना mistake. सनस्क्रीन को लेके भी बहुत ज़्यादा मिथ है कि मैंने आई हैव सीन सम पॉडकास्ट, वहाँ पे क्लियरली दे सेड कि सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, स्किन इज डैमेजिंग बिकॉज ऑफ सनस्क्रीन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना लास्ट में। मैं भी कई बार पता है हम भी अपनी नॉलेज को डाउट करने लग जाते हैं। हमारे साथ भी होता है जब हम भी चीजें, बट मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि आई एम वन पर्सन जो कभी सिर्फ बुकिश नॉलेज में नहीं जाती है, वो हमेशा एक्सपीरियंस करती है। मैंने मेरे क्लिनिक के अंदर जितने लोग जो लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करते थे आते हुए देखे हैं, तो उनके फेस भरे होते हैं अनइवन स्किन टोन से। ओके, एंड द स्किन इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव, मतलब वो सेंसिटिविटी, रेडनेस आपको दिखती है फेस पे कि आप कुछ भी लगाओगे उनकी स्किन कैन ट्रिगर बैडली। बिकॉज पीपल आर थिंकिंग कि हम बाहर नहीं जा रहे इसलिए हम सनस्क्रीन नहीं लगाते, मतलब यू नो ऐसे एक्सक्यूजेस भी सुने। ये जो लाइट्स हैं, दे ऑल गिव लॉट ऑफ पिगमेंटेशन। Yes, they're like enough to this give UV rays pigmentation. and something, right? Absolutely, absolutely. So sunscreen, वहाँ उस एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बोलूँ, सनस्क्रीन कभी मिस नहीं करनी चाहिए। राइट, सो आई थिंक और सनस्क्रीन ही बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे। लगा के देख लो, शायद बेटर हो जाए स्किन। राइट, सो व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एंटी एजिंग, एंड लाइक उसको कब स्टार्ट करना होता है एंटी एजिंग, इफ यू टॉक अबाउट? एक्चुअली ना एंटी एजिंग का भी कोई एज नहीं है। सो एंटी एजिंग, व्हाट इज एंटी एजिंग, मतलब कैसे पता चलता है कि नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स यू नो एंटी एजिंग थिंग एंड अभी हमें कुछ करना चाहिए? सो बेसिकली एजिंग किसी भी एज में हो सकती है, डिपेंड करता है। आपको शायद आपका ये एक रिंकल भी बुरा लगे, ओके, और किसी को शायद उसके 10 भी ना बुरे लगे। ये पर्सनल चॉइस है कि मुझे अब ग्रेसफुली एज होना है या मुझे बस एज होना है। राइट, मुझे अपना एज रिवर्सल करना है, मुझे ग्रेसफुली एज होना है, या मुझे अपनी एज को यहीं रखना है, या जैसे चल रही है चलने देना है। इट ऑल डिपेंड्स। मेरे हिसाब से आज की डेट में आपको 20s में भी एंटी एजिंग की जरूरत है। क्यों? सो एंटी एजिंग वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, दैट इज आल्सो फॉर दैट 21 लाइक ईयर ओल्ड, और कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं होता है? देखो पता क्या है, इतना पोल्यूशन और स्ट्रेस में है हम लोग आजकल, प्लस द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं, हर जगह रेडिएशन में बैठे हुए हैं हम लोग। ये पहले नहीं होता था, सतयुग में ऐसा नहीं होता था। ये चीज आज के जमाने में, तो आप सोचिए ना कि आपकी स्किन भी तो उतनी फास्टर उन चीजों को एक्सपोज है। बिल्कुल। पहले ह्यूमन की लाइफ कितनी होती थी, 150-150 साल आराम से लोग जीते थे, करते करते रिड्यूस होते थे, 100 पे आई जब हमारे यू नो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम, अभी तो करते करते हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इट्स प्रॉब्ली 75-70। आपको क्या लगता है हमारी लाइफ और कम नहीं होगी? ऐसी हमारी स्किन की भी है। जैसे जैसे हमारी लाइफ कम हो रही है ना, हमारी जो प्रॉब्लम्स हमें 30 साल की उम्र में आती थी वो 20 में आ रही है। राइट, एंड आई थिंक जब हम इतनी सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज, यू नो लाइफस्टाइल, तो आई डोंट नो कि मतलब इस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। पता नहीं मोनिका, लोगों को ना मिथ्स बहुत सारे हैं। लोगों के ना, अगर एक जगह एक्सपीरियंस खराब हो गया तो लगता है बस पूरी इंडस्ट्री खराब है। इवन नॉट एक जगह, मतलब शायद किसी और का एक्सपीरियंस खराब हो गया एंड बिकॉज़ ऑफ देयर वर्ड्स। राइट, मुझे लगता है आपको अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। जैसे सनस्क्रीन के केस में मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि
इट वर्क्स मैजिकली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप कुछ चीज़ कराते भी नहीं हो तब तक आपको नहीं पता होता है एक्चुअली में। देखो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है यार, दुनिया में लोग अपनी पूरी फेस की सर्जरी करा के आ रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दैट, बट एटलीस्ट आपकी स्किन को तो अच्छा रखो, और उसको अच्छा रखने के लिए अगर आपको एक सर्टेन एज पे डज नॉट, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा भी एक माइंड में था यार मैं अभी 42 की हो गई हूँ, मैं फिलर ले लूँ कि अभी और रुक जाऊँ, राइट। बट देन आई डिसाइडेड नहीं, वन फाइन डे आई वाज लाइक नहीं मुझे आज लेना है, मेरा बर्थडे है मैं लूंगी, राइट। एंड आई सॉ मैजिकल रिजल्ट्स विद दैट। कोई बम्प नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तो पता होता नहीं है, राइट। ये माइंड में नहीं था कि बम्प होगा मेरे कोई, राइट। मुझे ये था कि अब ले लूं या फिर रुक जाऊं, राइट। यू अंडरस्टैंड। बट आई फेल्ट व्हाई डिड आई वेस्ट माय 4 years, आई कुड हैव टेकन इट 4 years बैक आल्सो, राइट। बिकॉज अब मैं जब अपनी वीडियोस देखती हूँ पहले की और बाद की, ऐसा लगता है मैजिकल डिफरेंस है यार। Right. जबकि इतना थोड़ा आधा ml फिलर लिया है, हाफ ml, आधा ml तक वो मैजिक कर सकता है, सोच नहीं सकते। सो लाइक एट लास्ट वी आर नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन कि सबको लेना चाहिए, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट्स वेरी पर्सनल चॉइस। आज मेरा क्लिनिक है, मैं चाहूँ तो हर 4 महीने में बोटॉक्स ले सकती हूँ, चाहूँ तो मैं थ्रेड लिफ्ट ले सकती हूँ, नहीं लिया मैंने आज तक, मुझे नहीं नीड लगी। आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन, टच वुड, एंड आई डू माई स्किन केयर नाइसली, आई डू माई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करती हूँ ना मैं भी तो अपने फेस पे, माइक्रो नीडलिंग कराती हूँ, MNRF कराती हूँ, जिससे मेरी स्किन का कोलेजन बूस्टेड रहता है, मुझे जरूरत ही नहीं होती इन सब चीजों की फिर, राइट। हाँ, मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होती और मुझे कोई अच्छे से समझाता कि आपके फेस पे प्रिंकल्स आ रहे हैं मैम, आपको कोई इवेंट है मेरा, मैं बोटॉक्स लेती, बिल्कुल लेती, अगर मुझे अच्छे से एडुकेट किया जाता तो कोई नुकसान नहीं। सो लैक ऑफ नॉलेज भी है जिस वजह बहुत ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज भी है, बहुत तगड़ा लैक ऑफ, मतलब लोगों और गलत इन्फॉर्मेशन, super wrong information is also floating. So what about acne, like how we can treat acne without damaging skin? acne के लिए कौन से वाले treatments normally करा सकते हैं? एक्ने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे देखिए एक्ने के लिए कुछ आप सैलिसिलिक एसिड से ट्रीट कर सकते हैं, एजिलिक एसिड बहुत अच्छा वर्क करता है, नाइसिनामाइड बहुत अच्छा वर्क करता है, प्लस आप इसमें अगर ट्रीटमेंट्स की हम लोग बात करें, एक्ने के अंदर कुछ बहुत अच्छी ना केमिकल पील्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देती हैं। जितना आप एक्ने को अंदर से ट्रीट कर लेंगे ना, उतना आप समझ लीजिए कि एक्ने जल्दी चला जाएगा। अंदर से ट्रीट करने के लिए केमिकल पील बहुत अच्छा वर्क करती है, लेजर्स अच्छा वर्क करते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं, एक्सट्रैक्ट्स बताए हैं, ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं, नाइसिनामाइड, एजिलिक एसिड, सैलिसिलिक। सो सी मेरी कन्फ्यूज़न है पर्सनली, लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हूँ मैं एक चीज़ को लेके। वी आर टेकिंग ट्रीटमेंट्स, राइट, दैट स्किन ट्रीटमेंट्स, एंड आवर लाइफस्टाइल इज समथिंग कि वी आर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे इफेक्ट करेगा? मतलब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट हम उधर साइड हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है कि हम डाइट को भी लेके नहीं है, तो वो कैसे चलेगा फिर? क्या है ना, लोग चाहते हैं कि नो पेन नो गेन, राइट, मैं बाहर से सब करा लूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। दिस इज पीपल माइंडसेट कि इफ आई एम टेकिंग द ट्रीटमेंट तो आई डोंट नीड टू स्टॉप माय माउथ, यू एग्जैक्टली कि मतलब सब कुछ उसी पे होना चाहिए बिकॉज़ आई एम पेइंग सारा भार डॉक्टर पे डाल दो, एग्जैक्टली, डॉक्टर ही मुझे पूरा का पूरा सुंदर बना के भेज दे, मैं कुछ ना करूं, ऐसे नहीं होता। इट्स ऑलवेज द कॉम्बिनेशन इज इनसाइड आउटसाइड बोथ, ठीक है। आप अगर अपना स्मोकिंग का देखो इम्पैक्ट देखो, स्मोकिंग से ना पिगमेंटेशन आती है आपके अराउंड योर माउथ, यू डेवलप लॉट ऑफ पिगमेंटेशन, ब्लैक पिगमेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू, ब्लैक कलर कम ब्लैक होगा जितने ब्लैक लिप्स के आजकल केसेस आने लगे हैं लोगों को, और उसका रीजन लिवर भी है, ठीक है, प्लस स्मोकिंग। देन स्मोकिंग से आपका फेस एकदम डल हो जाता है, आपके रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं स्मोकिंग से। अगर हम बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल आपकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशंस पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि देखो हम नहीं लेते, या मैं ये कह रही हूँ कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप वंस इन अ वाइल आप ड्रिंक ले रहे हैं, इट इज ओके, यू टेकिंग, आई टेक रेड वाइन, इट इज एनीवेज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो, ठीक है, बट आपकी चॉइस है, मैं नहीं कह रही हूँ किसी को रेड वाइन ही। सो आई थिंक बट उससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो हैम्पर तो होगा। मॉडरेशन में कोई भी चीज है बुरी नहीं है, मैं स्मोक के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आप मॉडरेशन में कभी वंस इन अ वाइल आप लिकर ले रहे हैं, डेफिनेटली इट इज फाइन, क्योंकि लिकर अंदर से ड्राई करती है, आपको सुखा देती है। आपके अंदर से अगर ड्राइनेस आ गई तो हाइड्रेशन खत्म, मॉइस्चर खत्म, जिस जगह से मॉइस्चर ही खत्म हो जाता है वो जगह कैसे बेजान नहीं हो जाती। जब अंदर बेजान है तो बाहर आपको लगता है वो बल्ब वाला ग्लो होगा, नेवर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर आप लिकर लेना चाहते हैं उसको डिटॉक्सिफाई कीजिए बॉडी से। ओके, या देयर आर वेज एंड मींस टू डिटॉक्सिफाई। सो लाइक जब आप ट्रीटमेंट देते हो ये, तो आप उनको ये सब सजेस्ट करते होगे ना कि डाइट को लेके, लाइफस्टाइल लिटिल बिट। डेफिनेटली वो हम सारा पूछते हैं पहले। वी डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट दे आर ईटिंग, यू नो, जहाँ हमें लगता है कि हमें इनको कुछ
डिटॉक्सिफिकेशंस की जरूरत है, कुछ सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है, कुछ फूड से अच्छी चीजें बताने की जरूरत है दैट ऐड दिस टू योर डाइट, वी डू इट. इवन फॉर पिगमेंटेशन आपको हाई आयरन, हाई ओमेगा चाहिए, हम बताते हैं उनको किस फूड्स के थ्रू यू कैन इम्प्रूव दिस. So, what is the overrated products like people are wasting money on? मतलब according to you आपको लगता है कि इतना कुछ यूज, मतलब इसका तो कोई बिल्कुल यूज ही नहीं है और लोग ले रहे हैं. ट्रीटमेंट, इफ यू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, और रिक्वेस्ट है, ये जो फेयरनेस क्रीम्स बहुत चल रही है ना मार्केट में, Okay. प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस. इट्स अ श्योर वेस्ट ऑफ योर मनी. डोंट गो फॉर, देयर आर, सी, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में जाइए बट मेनी क्रीम्स आर लोडेड विद स्टीरॉइड्स. ओके, उसमें मत जाइए, क्योंकि आजकल ना मैं आपको बताऊं हर हफ्ते में 3-4 केसेस तो ऐसे आ ही रहे हैं जो स्टेरॉइड क्रीम लगा के अपने फेस को खराब कर आ रहे हैं. राइट. और So वो like the डैमेज, especially that brightening one or whitening one? वाइटनिंग क्रीम्स जो चल रही है ना बहुत सारी के इंस्टेंटली गोरा कर देंगे आपको, हफ्ते भर में गोरा कर देंगे. प्लीज उनसे बचिए. डोंट वेस्ट योर मनी. उससे बेटर किसी को गरीब को दान दे दो, दुआएं भी देगा. एक सिंपल मॉइस्चराइजर, आई थिंक दैट्स इनफ. बहुत बेसिक सा, बट सिंपल मॉइस्चराइजर, गुड स्किन केयर, एंड एक आपका अच्छा क्लिनिक होना चाहिए. मेरे हिसाब से आज के ज़माने में तो होना ही चाहिए, राइट, जिसके ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं. आप जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए, एंड आपको वो जो बेस्ट सूटेबल होगा आपके लिए वो आपको वो सजेस्ट करेंगे. ओके. सो या फॉर नाउ वी हैव अ रैपिड फायर राउंड. छोटा सा राउंड है हमारा एक, ठीक है, इसमें आपको इंस्टेंट, या सो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? सनस्क्रीन. बट आई थिंक दोनों में से क्योंकि choose नहीं कर मॉइस्चराइजर सकते. का काम भी तभी ढंग से होगा जब सनस्क्रीन लगी होगी ऊपर. ओके. वन प्रोडक्ट पीपल शुड स्टॉप यूजिंग इमीडिएटली? फेयरनेस क्रीम. फेयरनेस क्रीम्स. बस बेस्ट टाइम टू डू स्टेरॉइड बेस्ड फेयरनेस क्रीम्स. लेट मी करेक्ट मायसेल्फ. स्टेरॉइड बेस्ड. सो वी नीड टू लाइक रीड दैट की इंग्रेडिएंट्स क्या इसीलिए है. तो बोला जाता है आपको कोई क्रीम अगर अच्छी भी लग रही है, प्लीज आप थोड़े से जस्ट स्पेंड 500-1000 रुपीज, टेक द कंसल्टेशन, कैन आई यूज दिस, देन. बट अभी यू नो सिर्फ प्रमोशन से खरीद रहे हैं लोग नॉर्मली जो होता है, नो, सोशल दैट्स व्हाई मीडिया पे एवरीथिंग बस इज गोइंग कुछ ऑन. भी लोग देख रहे हैं एंड बाय कर रहे हैं. Yes. आई थिंक कंसल्ट समबडी बिफोर बाइंग. बेस्ट टाइम टू डू स्किन केयर लाइक मॉर्निंग और नाइट? दोनों टाइम चाहिए स्किन केयर. बट ज्यादा इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू यू कौन से वाला होता है? ब्रेकफास्ट करते हो? ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है ना पूरी Right. बॉडी को लोड करने के लिए. डिनर भी करते हैं, ठीक है, क्यों? पूरा दिन खत्म हो रहा है. Right. अब वो कर रहा है, मैं जब जैसे जितना मैं सोऊंगी उतनी मेरी बॉडी हील होगी. तो जब मैं सो रही हूँ उस टाइम पे मैं जो अपने फेस पे लगा रही हूँ ना, उसका काम भी बहुत फास्ट होगा. गॉट इट. ठीक है. स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स अगर आपको लगाने हैं ना, रात के समय लगाइए, बट इट शुड नॉट हैव स्टेरॉइड. डे में यू डू योर अदर थिंग्स, लाइक अच्छा हाइड्रेट करो फेस को, खूब अच्छे से क्लीन करो, खूब अच्छे से हाइड्रेट करो फेस को, मॉइस्चराइज करो, वेयर अ सनस्क्रीन, Sunscreen. गो आउट. व्हेन यू कम बैक यू कैन यूज सम गुड सीरम्स, जो कि अब आपकी स्किन में वो एंटी एजिंग सीरम्स आप लगाइए रात को. ओके. नाइट बाम्स लगाइए अपने फेस पे. रिजुविनेटिंग क्रीम्स बहुत अच्छी वर्क करती है रात को. सो हर एक, दोनों स्किन केयर अलग हैं बट दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है. एंड यू नो कुछ सीरम्स होते हैं जैसे, सो जस्ट लेट मी नो इन अ वन वर्ड कि व्हाट इज रेटिनॉल फॉर, लाइक वी शुड यूज Anti-aging. एंटी एजिंग. ओके. hyaluronic acid फॉर हाइड्रेशन. hydration. niacinamide फॉर एक्ने, ऑयल कंट्रोल, ओके. स्किन लाइटनिंग. So we can say it's for oily skin. ऑयली स्किन पे भी नाइसिनामाइड बहुत अच्छा काम करता Okay. And vitamin C for? है. स्किन ब्राइटनिंग, Okay. ग्लो के लिए. स्किन वाइटनिंग भी करता है, पिगमेंटेशन भी हटाता है. Okay. So let's talk about, you know, women empowerment now. So what do you think about women empowerment? So for me, women empowerment is when a woman is happy, confident in whatever she's doing. मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. एज अ वुमेन आप, नो मैटर आपका स्किन का कलर क्या है, बट आप खुश हो उससे, Right. तो यू आर एम्पावरिंग योर सेल्फ. यू फील वेरी कॉन्फिडेंटली, नो मैटर आपके यू नो यू हैव अ कर्ली हेयर, यू हैव लॉन्ग हेयर, यू शॉर्ट हेयर, बट यू नो यू वेरी कॉन्फिडेंट फ्लॉन्टिंग योर सेल्फ. आपका बॉडी का शेप कुछ भी है. Right. मैं ये नहीं कहती कि आपको इतना मोटा है और आप कह रहे हो कि नहीं आई एम कूल अबाउट इट. नो, बट इवन इफ यू हैव एथलेटिक बॉडी है, लीन बॉडी है, पेटीट है, आपकी हाइट कम है, बट यू नो व्हाट, यू आपको एक अंदर से ना, एक कहते हैं ना, समथिंग फ्लोज आउट के, यू नो आई एम हियर टू, मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. Confidence होता है. Yeah. वो दिखता है आपके ऑरा के अंदर. Exactly. तो वो बहुत जरूरी है व्हेन यू आर अ वुमेन, क्योंकि बाहर दुनिया बहुत बैठी है आपको ये बताने के लिए कि नो, लिसन, दिस इज योर लिमिट, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट. Right. सो एक वुमेन को स्पेशली ना अपने अंदर जो सोल कनेक्ट उसका बहुत जरूरी है, वहीं से वो
पावर, वो कहते हैं ना बैटरी अंदर ही है, चार्जिंग वहीं से मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आई थिंक दूसरे जो भी बोलेंगे उनके वर्ड्स भी इफेक्ट नहीं करते। एब्सोल्युटली। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स भी ना तभी इफेक्ट करते हैं जब कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक होता है। आपको सेल्फ डाउट्स होते हैं ना, तो वुमेन हु इज कॉन्फिडेंट, हु इज क्लियर, मैं जो भी कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, मुझे कहाँ पहुंचना है लाइफ में। राइट, मतलब किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। नो मैटर आप तीनों टाइम घर में किचन में खाना बना रहे हो, आप बच्चों को बहुत अच्छे, आपके बच्चों के ग्रेड्स आ रहे हैं, भाई मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम है वो। राइट, योर हाउस इज क्लीन, योर फैमिली इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, you personally have decided to dedicate your life to your house, right, to your family, और आप उसमें बहुत खुश हो। It doesn't matter you're working or not working, it's about your happiness. It's about your happiness. It's about आप उस काम को कितना कॉन्फिडेंटली कर रहे हो। 4 लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। राइट, राइट, वो मेरे हिसाब से इज लाइक एन एम्पावर्ड वुमन। दैट वुमन कैन एक्चुअली impress lot of other women without even trying to impress. Right. Okay, so what is your achievements? Achievements, I don't know where to start from. बहुत बड़ी तो कोई मैं हस्ती हूँ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए मेरी अचीवमेंट यही है कि मैं यू नो सिटिंग विद यू हैव बीन आवर एक्स क्लाइंट, राइट, यू हैव टेकन डाइट, सो टुडे कुछ आपको लगा होगा, कुछ आपने देखा होगा in my work, that today we are sitting and chatting. No, I have seen that you are also going in some pageants or you know as a judge or something. Yes, definitely, lot of achievements are there. वैसी achievements बहुत हैं, but मेरी खुशी, मेरा satisfaction of whatever I am doing today is my achievement. सबसे बड़ी चीज़ I think बहुत सारी women's की life के अंदर एक जो confidence उनका खो गया था ना, whenever they used to see the mirror and they used to feel कि oh my god अब तो मेरे दिन चले गए, you know, my beauty is fading out, my family is like telling me कि oh you don't look that beautiful anymore, right? Okay. वो चीज इतनी सारी women's की life में जो वापस आई है ना, that happiness, that confidence again, because मुझे लगता है when your skin is fixed you are unstoppable, right? आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है। अब देखो जिस दिन हमने मेकअप करा हो, स्किन बहुत अच्छी लग रही है हमारी, बाल ब्लो ड्राई करे हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है, राइट, ऐसे ही है। तो आई फील वेरी हैप्पी, दिस इज माई अचीवमेंट कि पता नहीं कितनी वुमेन्स की लाइफ के अंदर मैंने वो जो लॉस्ट था उनका कॉन्फिडेंस, उनकी ब्यूटी, आई समवेयर आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग, लाइक उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज सबके वर्ड्स वो आपने देखे होंगे, यू नो, सबकी फीलिंग्स आपने देखी होंगी कि उनके क्या रिएक्शंस रहे होंगे। आई स्वेयर, मेरे लिए मेरी अचीवमेंट यही है, मैं आई एम बॉर्न टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ through their skin, through their health, through their personality. This is what I think I am born for and I am enjoying doing it. उसके अलावा as a dietitian, of course, I've been working from 10 years. I don't know कितने लोगों को किस किस कंट्री में हेल्प करा होगा। प्लस उसके बाद सोल्सप्री लाइफ में आया कोविड के अंदर, जब लोगों के बाल गिर रहे थे, मेरे भी स्किन भी खराब हो रही थी, तब सोल्सप्री का you know we gave birth to Soulspree, and today in Soulspree we have got very good doctors. So Soulspree name is something related to wellness or something, is it? Yeah, so soul and spree. So soul is like, you know, your inner connection with your inner self, and spry is like outer fitness. Okay. So अंदर का connection, it's a combination of internal, exactly, and outer fitness. जब ये दोनों sync में होते हैं, this is harmony. तो Soulspree का काम ही यही है to bring complete harmony in yourself. Okay. I think the person when आपका harmony अपने साथ में आता है ना, yin yang, तुम आप अनस्टॉपेबल होते हो। वही मैंने आपको बोला कि मेरा तो बर्थ ही, मुझे लगता है शायद, मुझे अब ऐसा फील होता है कि शायद आई एम बॉर्न टू डू दिस, एंड नाउ सोल्सप्री इज डूइंग वंडर्स, टचवुड, इतने लोगों को हमने हेल्प करा है, इतने टेस्टिमोनियल्स हैं आज हमारे पास, हमें भी नहीं पता था खोलते समय कि यू नो वी विल बी एबल टू क्लियर सच प्रॉब्लम्स ऑल्सो फ्रॉम द फेस। एंड नाउ आई हैव बीन वर्किंग विद लॉट ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स, गोइंग एज ज्यूरी and going as an official beauty partner, doing workshops with them, helping the candidates, helping the participants, कैसे अपनी स्किन को वो एक पेजेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। देखो हर वुमेन ना अपने हेड में एक ब्यूटी क्वीन है, एवरी वुमेन इज अ ब्यूटी क्वीन, बस फर्क क्या है कि उसको वो वैलिडेशन मिली नहीं है कि मैं एक ब्यूटी क्वीन हूँ, and they are looking for validation, you know. Yes, जब हम इन पेजेंट्स में जाते हैं exactly, जब हम इन पेजेंट्स में जाते हैं एंड व्हेन उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि उनकी स्किन के ऊपर भी काम किया जाता है, उनकी वॉक के ऊपर भी काम किया जाता है, उनकी बॉडी के ऊपर भी काम किया जाता है, उनके वेट के ऊपर भी ना, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है, एंड आई लव डूइंग इट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट्स, एंड आई थिंक many more to come
ऊपर वाले का ऐसे ही हाथ रहा साथ रहा तो. So like how can we motivate a woman who wants to do something in the life, or abhi they are just thinking about ki I want to do something but they are not getting any platform, or you can say a way कि कहाँ से start करें. So सी कंफ्यूजन्स आजकल बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत बिकॉज हैं. सी देखने के बाद क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ देखने के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि आई डू दिस. नहीं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. yeah. आई टेल यू, जब मैं डाइटिशियन भी बनी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी वो इनर कॉलिंग थी अपनी बॉडी को फिक्स करने की. एग्जैक्टली. कहीं ना कहीं अब मैं एक डाइटिशियन को देखती और मुझे लगता है तो बहुत सक्सेसफुल है, मुझे इसकी तरह बनना है, शायद मैं अच्छा नहीं कर पाती. तो या तो ऊपर कहते हैं ना, सिट विद योर सेल्फ इन मेडिटेशन. 4-5 ऑप्शंस है आपके पास, सब ऑप्शंस के बारे में सोचो शांत होकर, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा व्हाट इज बेस्ट फॉर मी. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो अट्रैक्शन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है. वो बहुत टेम्परेरी होता है. वो टेम्परेरी है. आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा कि यू कैन डू दिस, बट आफ्टर दिस वो चला जाता है. बट एक कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आप हमेशा सोच रहे होते हो. आई थिंक दैट्स द रियल थिंग कि आपको वही करना चाहिए. कई बार होता है ना यार, आई वांट टू बी, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है. Right. मुझे टाइम नहीं मिला लाइफ में, बट आई लव डिजाइनिंग क्लोथ्स, आई लव डिजाइनिंग. मैं कहते हैं ना, एक सेकंड में माइंड में मेरे आ जाता है कि मुझे कैसे एक कपड़े को डिजाइन करना है. राइट. दैट्स वेयर योर पैशन इज लाइंग. आई थिंक यू शुड एटलीस्ट उस चीज को तो जरूर ट्राई करके देखो एक बार. बिल्कुल. आई थिंक विद कंपेयर टू मेनी अदर्स आप उसे बहुत बेटर कर सकते हो. तो मेरा ना बचपन से ये था कि मैं किसी को भी देखती थी, मुझे लगता है यार इसका नोज पतला होता है ये अच्छी लगती, इसके हेयर ऐसे होते हैं ये अच्छी लगती, इसका बॉडी का शेप ऐसा होता है ये और अच्छी लगती. तो आई रियलाइज कि मेरे अंदर वो बचपन से ही था, फाइंडिंग फ्लॉज एंड फिक्सिंग इट. तो वो कहीं ना कहीं वो करते दैट इज व्हाट आई एम डूइंग टुडे. लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई यूज्ड टू डू दिस इवन व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल. तो वो चीज आपको खुद देखनी पड़ती है कि मेरा व्हाट्स पुलिंग वाला क्या है. राइट. व्हाट्स पुलिंग मी, व्हाट्स ट्राइंग टू टॉक टू मी. बिकॉज उसमें आप बहुत ज्यादा, हमेशा मुझे लगता है कि वो आपके हमेशा आपके माइंड में वही सब घूमता है जो परमानेंट होता है, जो आप करना चाहते हो. बाकी तो कई बार क्या होता है कि कुछ वीडियोस देख के हम एकदम से हो जाते हैं कि आई कैन आल्सो डू दिस. जैसे होता है ना, आपने किसी हीरो को देखा, 2-4 उसके पॉडकास्ट या इंटरव्यू सुने, आपको 4 दिन के लिए क्रश आ जाता है. एग्जैक्टली. प्लीज थोड़ा टाइम दो. अगर कोई चीज इमीडिएटली पसंद आ जाए ना, थोड़ा R&D करो उसके ऊपर, थोड़े दिन में आपको समझ में आ जाएगा whether it is for you or not. या समझ आ जाता है एक्चुअली में कि हाँ ये मतलब इतना हैवी, बिकॉज आपको ना कमियां भी दिखने लग जाती हैं फिर. नहीं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं इसमें. या सो लाइक हाउ कैन समवन मेक अ करियर इन दिस, लाइक हाउ कैन वी एनीबडी कैन स्टार्ट? सो इन दिस फील्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी आप बहुत चीज़ों में करियर बना सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, यू कैन प्रैक्टिस एज अ स्किन थेरेपिस्ट. सो इन अ क्लिनिक, राइट? हाँ, आप क्लिनिक में आप एज अ लैब टेक्नीशियन भी काम कर सकते हैं, एज अ लेजर टेक्नीशियन भी काम कर सकते हैं. So we can say like there is no any requirement of particular education or something. No, there are proper educations you need to have. No, the course is education, but we can say like professional education starting of your graduation or something. It's not mandatory. Basic education अगर आपके पास में, उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अगर आप इनके अंदर करते हैं, एंड उसके बाद आप अपना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सम गुड डॉक्टर्स, you can make a good career in this industry. Okay. So like how our audience can connect to you? They can come to our clinic. Treatments कराने हैं और those who are really worried about their skin और समझ नहीं आ रहा ये लगाऊं या वो लगाऊं, या ये ट्रीटमेंट लूं या वो ट्रीटमेंट लूं, they can come over to our clinic Salisbury, which is in J Block in sector 18, J9, and Noida में है हमारा clinic. They can come and take the consultations. Okay. So Simpi, thank you so much for sharing your knowledge, and you shared with us, and we have got so many answers, but for some queries, like if anybody have any queries, so we'll link your profile and address in the description box. Sure. So just do let us know in the comment, and if you have any queries, so you can just also connect Dr. Simpi. Yeah. Thank you so much. Thank you.